आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आप सभी को हैप्पी ईस्टर डे। आज का वचन मत्ती 28 फर्स्ट टू 20 पढ़ेंगे। मत्ती 28 का 1 से 20 तक पढ़ेंगे। क्या लिखा है? आफ्टर द सबत एट द डाउन ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मैरी मगदलिनी एंड अदर मैरी went to look at the tomb. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from the heaven, and going to the tomb, and rolled back to the stone, and sat on it. And his appearance was like light shining, and the clothes were white and snow. The guards were so afraid him that they shocked because of that man. The angel said to the woman, "Do not be afraid, for I know that you are looking for the Jesus who was crucified, and he is not here, and he is risen, just as said. Come and see the place where he lay." They go quickly and tell his disciples, and he has risen from the dead, and is going ahead of you and into Galilee, and there you will be seen him. Now I have told you. So the woman hurried away from the tomb, afraid and yet filled with the joy, and ran to tell his disciples. Suddenly Jesus met them, and Galilee said they came to him, and escaped his feet and worshipped him. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brothers to go Galilee, and there will be see." While the women were not in their way, some of the guards went into the city and reported to the chief priest of everything half had happened. Then the chief priest had met with the elders and devised a plan. Then they gave the soldier a large amount of money, and telling them, "You are to say his disciples and came during the night and stolen him away while were asleep. If this report gets the Galilean, and we will satisfy him and keep out with the trouble." So the soldiers took the money and did as they were instructed, and the story has been widely circulated among the Jews to his very days. Then the 11 disciples went to the Galilee, the mountain where Jesus had told them to go. Then they saw him, and they worshipped him, but some doubts. Then Jesus came to them and said, "All the authority in the heaven and the earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all the nations, baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them and to obey everything I have commanded you. And surely I will with you always to very end with the age." किसी का हिंदी वर्जन में लिखा है, आइए देखते हैं। सप्त के दिनों के बाद सप्त के पहले दिन पर फटने पर मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आईं, और देखो एक बड़ा मुठगोल हुआ, और क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। और उसका रूप बिजली का सा, और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्जवल था, और उसके भय से पौरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। और स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहा कि वह मृतकों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओ। और देखो मैंने तुमसे कहा दिया। और वह भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गईं। और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा, "सलाम।" और उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसे को दंडवत किया। और देखो
यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। वह जी ही रही थी कि देखो, पहरियों में से एक कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल महायाजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने उन पुरनियों के साथ इकट्ठा होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा कि यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेलों आकर उसे चुरा ले गए। और यदि यह बात हकीमों के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। सो उन्होंने रुपये लेकर जैसा सिखाया गए थे वैसा ही किया। और यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। और 11 चेलों गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र नाम आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ बना रहूंगा। आप सभी को इस वचन के जरिए पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। प्रभु इस वचन में क्या कहता है कि प्रभु कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। और वह कहता है कि आप सभी जाकर क्या बनाओ, चेले बनाओ, और उन लोगों को क्या करो, बपतिस्मा दो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। और जो भी बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई हैं उन्हें हमें क्या करना है, सभी को क्या करना है, बताना है। यानी कि हमें क्या करना है, चेले बनाना है। हमें क्या करना है, चेले बनाना है। और प्रभु के सारे वचनों को इस संसार के अंदर हर एक जगह पहुंचाना है। और प्रभु के लोगों, इन सभी जो प्रभु के जो लोग हैं, ये जो वचन को लेकर चलते हैं, उन सभी को प्रभु कह रहा है कि जाति जाति जगत जगत के और स्थान स्थान पर और पूरे संसार के अंदर जाकर मेरे नाम का वचन बांटो और क्या करो, प्रभु के नाम का और भी नाम को बढ़ाओ और सभी को बपतिस्मा दो और प्रभु पवित्र आत्मा से नाम से उन्हें छुड़ा लो। उनके जो पुराना जीवन है उससे उनको नया जीवन कर दो। इसीलिए प्रभु इस वचन के जरिए पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। प्रभु हमें क्या कह रहा है कि आप जाकर सभी को चेले बनाइए। और प्रभु हमें आज्ञा दे रहा है कि जो भी मैंने बातें कही हैं वो सभी लोगों तक तो पहुंचनी चाहिए। इसलिए आप सभी को आशीष हो इस वचन के जरिए। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वचन समझ में आ गया होगा। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि ये जो वीडियो है सभी लोगों तक पहुंचे और प्रभु के दासों लोगों तक पहुंचे और सभी लोग इसे सुनकर आशीषित हों। आमीन। जय मसीह।